हाय वेलकम। एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. You are audible, sir. So let's start. Very few we have joined. Okay, we were talking about directive principle of state policy, right? We were discussing about directive principle of state policy, and this deals from Article 36 to 51 of Indian Constitution. Article 36 to 51 of Indian Constitution, directive principle of state policy. Yesterday we have discussed some of the features like these DPSPs are negative context for the state. DPSPs are negative context for the state, negative for state. Sorry, DPSPs are positive, not positive for state. And fundamental rights are negative. Fundamental rights are negative for state. Yesterday we divided or categorized or classified DPSPs into four categories. One is socialistic. Second is Gandhian. Third is Western liberal principle. And fourth is, what was the fourth? Ideas of freedom struggle. So these are the four classifications of directive principle of state policy. One thing we need to be clear here that directive principle, just take few more focus on the name directive principles, state policy. Okay, these four things are there. So directive means it gives directions, or directive means it gives order, or directive means it gives certain ways, recommends the government. So it directs the state. The state means government. It directs the government. It directs the government to take some steps. And whatever the policies are being framed, the government will implement these directive the principles in those policy formulated. Government will implement those policies, those directives into these policies and schemes formulated. So these are the principles, a set rules. A set rules for the government to implement. So this gives the duty to government. Whoever forms the government for 5 years, the government has the duty for 5 years to implement these directives in the form of policies, in the form of welfare functions, right? So government directs. That is the directives of the government, right? So we'll take one by one this socialistic, Gandhian, Western liberal, and ideas of freedom struggle. Before that,
let's discuss some of the background feature of directive principle of state policies. Before we have studied, or we just saw fundamental rights, right? So fundamental rights and DPSPs, what is the relationship? What is the relationship between fundamental rights and directive principle of state policies? So first of all, fundamental rights are negative for state. Fundamental rights are negative for states. Okay, one side I'll write fundamental and one side DPSPs. Fundamental rights are negative for the states. DPSPs are positive obligations for states. Positive obligations for state. According to Supreme Court, both fundamental rights and directive principle of state policy, both are important for the well-being of citizen or the residents or the society. See, both are important for well-being. Both are important for well-being, and there is no inherent conflict. Inherent means if someone is fulfilling its duty and someone's right are there to get some of the jobs, some of the rights. So in this, there is no conflict. There is no conflicts. In the same way, there is no conflict in fundamental rights. Fundamental rights और directive principle of state policies में कोई conflict है नहीं. As per the Supreme Court, they both are supplementary to each other. They both are supplementary to each other. एक दूसरे को supplement करते हैं. तो जो ideas हमें fundamental rights में नहीं मिलता है, वो ideas हम directive principles से निकाल लेते हैं. जो directive principles में नहीं मिलते हैं, वो हम fundamental rights में निकाल लेते हैं. So both are supplementary to each other, and both form part of integral or integral part. Both form integral part of the scheme. Both fundamental rights as well as DPSPs, both are the integral part of the scheme. These are always followed while framing any law, any scheme, any policies. And it is the duty of the Supreme Court. Supreme Court is given the duty to interpret. Supreme Court has the duty to interpret these fundamental rights and DPSPs both in such a way that both are harmonized in harmonious manner. In such a way that both are harmonized. So this is the duty of Supreme Court to interpret these fundamental rights and DPSP so that there shall not arise any conflict. Both shall be harmonized. And hence the word appears doctrine of harmonization. डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशंस. तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशंस यहां पर सामने आता है. डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन. डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनाइजेशन का मतलब यही है कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को ऐसे इंटरप्रेट किया जाए कि दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो. कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो. दैट्स बोथ शैल बी हार्मोनाइज्ड in proper way. बट अगर कोई एक ऐसा केस डील कर रहे हो जहां पर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज दोनों को रेफर करना पड़ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को भी रेफर करना पड़ रहा है और डीपीएसपीज को भी रेफर करना पड़ रहा है, दोनों के ऊपर अगर कॉन्फ्लिक्ट है और वो कॉन्फ्लिक्ट अगर अनअवॉइडेबल है, अवॉइड नहीं किया जा सकता है, देन fundamental right is considered bigger than DPSP. Fundamental rights
are given upper hand than directive principle of state policies. Okay, so provisions of fundamental rights are always taken into considerations over directive principle of state policies in case of unavoidable conflict. अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दोनों में से किसी को इंटरप्रेट करना है, तो फंडामेंटल राइट्स को हम, या सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस देती है. तो फंडामेंटल राइट्स आर गिवन मोर प्रेफरेंस देन डीपीएसपीज हियर. इन लेट 1960s में क्या हुआ, लेट 1960s में, चलो लेट 1960s का सिचुएशन है जब बैंक को नेशनलाइज किया गया था. ईयर याद है? 1969 में बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था. बहुत सारे प्राइवेट जो बैंक्स थे, बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. तो पहले वो प्राइवेटली चला रहे थे, इंडिविजुअल पर्सन्स, कोई इंडिविजुअल एक ऑनर होता था उसका, ठीक है, सिस्टमेटिक चलाते थे, लेकिन वो एक इंडिविजुअल पर्सन ऑनर होता था. अब क्या कि गवर्नमेंट उसको नेशनलाइज कर दी और इंडिविजुअल पर्सन ऑनरशिप जो है उसका चला गया. अब ऑनर गवर्नमेंट हो गई. बैंक को नेशनलाइजेशन करने के बाद अब बैंक जो है वो कंट्री का बैंक हो गया, नेशनल का बैंक हो गया, राइट. तो सारे बैंक वाले क्या किए, बैंक वाले फिर कोर्ट गए, कोर्ट में जाकर के बोले आर्टिकल 14, 16 और 19 ये हमारा वायलेट हो गया, क्योंकि ये जो नेशनलाइज कर दिया गया तो हमारा जो लाइवलीहुड है वो चला गया, इक्वालिटी चली गई, इक्वालिटी होनी चाहिए सब में, इक्वालिटी चली गई. और 19 कोई भी प्रोफेशन हम अगर कर सकते थे वो भी चली गई हमारी, है ना. तो दे वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए वो लोग, ठीक है. अभी एक ये बैंक वाले सुप्रीम कोर्ट गए, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट ये था, गवर्नमेंट कही, मतलब गवर्नमेंट ऐसे बता रही थी कि जो आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39B and 39C, government was implementing these articles, article 39B and 39C, ठीक है. गवर्नमेंट का आर्गुमेंट ये था कि हमने सिर्फ इस आर्टिकल 39B एंड 39C को इम्प्लीमेंट किया है. अभी 39B एंड 39C को इम्प्लीमेंट किया है, दैट डजंट मीन दिस इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 16 एंड 19. दिस वाज द आर्गुमेंट ऑफ द गवर्नमेंट. ये जब सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सभी लोग जब कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने इनको राइट दे दिया, बिकॉज आर्टिकल 39B एंड 39C, this both are from DPSPs, and their rights were being violated. Article 14, 16 and 19 being violated. So सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इन लोगों को प्रेसिडेंस दे दिया, इनके फेवर में जजमेंट दे दिया कि ये जो कह रहे हैं वो सही है, बैंक को नेशनलाइजेशन नहीं करना चाहिए था, इनका राइट्स वायलेट हो गया. तो सुप्रीम कोर्ट व्हाट डिड, सुप्रीम कोर्ट डिड gave more favor to fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा प्रेसिडेंस दे दिया, ठीक है, कि इंडिविजुअल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलेक्टिव राइट्स से, है ना. तो फंडामेंटल राइट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपीस. तो 39B एंड 39C को सुप्रीम कोर्ट ने निग्लेक्ट करके फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया, ठीक है. इसमें एक आर्टिकल और था 31 भी था.
अभी जब इतना हो गया तो गवर्नमेंट भी चुप नहीं बैठी। गवर्नमेंट क्या की, गवर्नमेंट वेंट, फिर गवर्नमेंट क्या किया, इसके अगेंस्ट में एक अमेंडमेंट ला दिया कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाया। गवर्नमेंट ब्रॉट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी क्या किया गवर्नमेंट, अमेंडमेंट ला करके 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये लाया गया, गवर्नमेंट ने लाई। और इससे क्या की, एक नया आर्टिकल 31C ऐड कर दिया। 31C एडेड आर्टिकल 31C इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये 31C, और ये 31C ये कहता है, आर्टिकल 31C ये कहता है कि इफ पार्लियामेंट इनेक्ट्स any law or enacts a law giving effect to some of the DPSPs, if parliament enacts law giving effects to some of the DPSPs, and in the process if it violates article 14, article 19 and 31, such a law shall not be declared invalid। ठीक है, such a law shall not be declared invalid merely on such ground। तो पार्लियामेंट एक आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस की। आर्टिकल 31C में एक ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया कि अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, और अगर वो लॉ आर्टिकल 14, 19 एंड 31 को वायलेट करता है, तो उस इनेक्टमेंट को, जो नया इनेक्टमेंट करेगा, उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। सिर्फ इन सब आर्टिकल को वायलेट करने के लिए उसको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। दिस वाज द आर्गुमेंट गिवन बाय पार्लियामेंट ने ऐसा किया। अभी देखो, अभी ये क्या हुआ, आर्बिट्रेरी हो गया ना। दिस इंटायर कॉन्सेप्ट बिकेम आर्बिट्रेरी कि पार्लियामेंट के पास ज्यादा पावर है। ऑफ कोर्स पार्लियामेंट के पास पावर है, बट ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है ना। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, जो केशवानंद भारती में इसको चैलेंज किया गया था। केशवानंद भारती के केस में इसको चैलेंज किया गया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पॉइंट को डिस्कस किया, और केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड कर दिया कि 25th अमेंडमेंट एक्ट जो है, 25th अमेंडमेंट एक्ट इज वैलिड। 25th अमेंडमेंट एक्ट को वैलिड बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बोला कि इफ इट वायलेट्स सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स टू ब्रिंग और टू इंप्लीमेंट some of the DPSPs, this is valid। ठीक है, this was one news। then in 1942 yes 1976 42nd Amendment Act। सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, अभी क्या ये पार्लियामेंट, ये भी तो अमेंडमेंट था ना। ये इंदिरा गांधी के समय में 42nd अमेंडमेंट लाया गया था, और बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंड किया गया था, राइट। सो हियर व्हाट पार्लियामेंट डिड, पार्लियामेंट गेव प्रेसिडेंस
टू डीपीएसपी। तो पार्लियामेंट में डीपीएसपी को ज्यादा बड़ा मान लिया और फंडामेंटल राइट्स को छोटा मान लिया। फंडामेंटल राइट्स को उतना प्रेसिडेंस नहीं दिया। पार्लियामेंट, व्हाट दे डिड पार्लियामेंट, और फंडामेंटल राइट्स स्पेशली आर्टिकल 14, 19 एंड 31। तो whatever the changes have been brought this 42nd amendment act में, those changes were violative of article 19, article 14 and article 31, though the Supreme Court considered is legal valid, उसको legal और valid मान लिया सुप्रीम कोर्ट later on also। ठीक है, तो here parliament also gave preference to DPSPs then fundamental rights, and especially इस आर्टिकल 14, 19 एंड 31 के ऊपर, 31 के ऊपर। और 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था, अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था 1978 में, और यहां पर राइट टू प्रॉपर्टी हटा ली गई थी आर्टिकल 31 और 19(1)(f), ये दोनों आर्टिकल रिमूव कर दिया गया था, मतलब डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, और 300A में लेकर चला गया था। ठीक है, तो जब इसको रिमूव किया गया, देखो इसको रिमूव किया गया, इसका मतलब ये भी है कि ये दीज वेर द राइट टू प्रॉपर्टी। ये राइट टू प्रॉपर्टी है, इसका मतलब इंडिविजुअल पर्सन हैज द राइट टू पजेज सम ऑफ द प्रॉपर्टी, है ना। इंडिविजुअल पर्सन को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार था, और अगर गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी को ले लेती थी और वो पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता था, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं उनके, है ना, और वो जीत कर आता था, फिर उसकी प्रॉपर्टी उसको गवर्नमेंट को वापस करनी पड़ती थी। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट में इस पूरे आर्टिकल को, यानी फंडामेंटल राइट्स को ही डिलीट मार दिया। ठीक है, 31 को और 19(1) को डिलीट करके इसको लीगल राइट बना दिए, लीगल राइट्स बना दिया गया। यहां पर इसका मतलब ये भी है कि डीपीएसपीज, मेनली टू इंप्लीमेंट डीपीएसपीज, सिर्फ डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए इस राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल दिया गया। सो हियर ऑल्सो डीपीएसपीज हैव बीन गिवन मोर प्रेफरेंस देन फंडामेंटल राइट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? देन इन द ईयर 1980 में एक अच्छा केस आता है, मिनर्वा मिल केस। मिनर्वा मिल केस, यहां पर क्या हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले 31C को वैलिड दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इन 25th अमेंडमेंट एक्ट में जो 31C को वैलिड माना था, तो मिनर्वा मिल केस में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने 31C को, आर्टिकल 31C को स्ट्रक डाउन कर दिया। 31C को स्ट्रक डाउन कर दिया, जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ था। तो इसको आर्टिकल 1980 में, यानी मिनर्वा मिल केस में बस इसको 31C, आर्टिकल 31C, जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करके हटा दिया। बोला कि देयर इज नो सच प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन, सेइंग दैट दिस वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। बाद में क्या की सुप्रीम कोर्ट ने, बाद में इन सब्सिक्वेंट रूलिंग्स, बहुत सारे अलग अलग केसेस में रूल करके सुप्रीम कोर्ट में, या वेरियस रूलिंग्स को दे करके सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि सम ऑफ द डीपीएसपीज, कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो आर्टिकल 31C में है, ठीक है, जो आर्टिकल 31C में है, कैन इंक्लूड 39B एंड 39C। अब ये 39B और 39C क्या है हम देखेंगे अभी। तो 31C ये कहता है कि
अगर कोई पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाती है और वो फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट करता है, तो ऐसे को सिर्फ कुछ आर्टिकल, कुछ फंडामेंटल राइट्स के वायलेट करने के कारण उसको इनवैलिड नहीं किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अलग अलग रूलिंग्स में ये एक्सेप्ट करती है कि जो आर्टिकल 39B है और आर्टिकल 39 का C है ना, क्लोज C जो है, ये 31C के जैसा है। 31C के जैसा है मतलब कि अगर 39B में और 39C में कुछ लॉ अगर बनता है तो उसको हम फंडामेंटल राइट से ज्यादा मानेंगे, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट पोजीशन जो है आर्टिकल 31C का, प्रेजेंट पोजीशन ऑफ आर्टिकल 31C कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट कैन इनेक्ट एनी लॉ, पार्लियामेंट कैन इनेक्ट लॉ गिविंग इफेक्ट to Article 39B and C, and in the process if it violates Article 14, और अगर ये जो भी लॉ जो ये लॉ बनाती है, ये लॉ अगर आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, violates Article 14, such law shall not be declared invalid merely on this ground, not invalid. Such law shall not be declared invalid merely on this ground कि सिर्फ आर्टिकल 39B और C सिर्फ आर्टिकल 14 को इनवैलिड करता है, सिर्फ आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, तो सिर्फ आर्टिकल 39 और B और C को वैलिड माना जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया कि आर्टिकल 39B एंड 39C, 39B और 39C जो है इसका वैल्यू ज्यादा है देन आर्टिकल 14 से, ठीक है। अभी प्रेजेंट का पोजीशन है, ठीक है। तो आर्टिकल 39B एंड 39C हैज मोर प्रेफरेंस देन आर्टिकल 14 इन द रेस्ट ऑफ द केसेस। इन रेस्ट ऑफ द केसेस का मतलब कि जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं, इन ऑल अदर केसेस फंडामेंटल राइट्स आर अबोव डीपीएसपीस। तो सिर्फ आर्टिकल 39 और 39B एंड 39C अगर इसके बारे में आए, क्वेश्चन आता भी है कि विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स। So Article 39B and 39C, these two clauses of 39B and C are given precedence over Article 14, then fundamental rights. और जो दूसरे फंडामेंटल राइट्स हैं वो ज्यादा वैल्यू देते हैं डीपीएसपी से। अदर फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी। अगर दोनों के बीच में अगर केस आए तो फंडामेंटल राइट्स का जो केस होगा वो जीत जाएगा और डीपीएसपी के जो केस होंगे उसको बैकफुट होना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 39B और 39C को इंक्लूड करता है देन डीपीएसपी को जीतना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स को कम मतलब वैल्यू दिया जाता है अगर 39B और 39C इंक्लूड है तो, ठीक है। 39B और 39C अगर इंक्लूड है तो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? कोई डाउट है क्या यहां पर? यस सर, जैसे कि अभी जो है मतलब जो नेशनलाइज्ड बैंक थे उनको मतलब प्राइवेट बैंक्स में अभी वो किया गया, कन्वर्ट किया गया, तो आगे चल के ऐसा हो सकता है कि जो प्राइवेट बैंक्स, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बैंक्स का, वो वापस से नेशनलाइज हो सके? हाँ, हो सकता है ना, किया जा सकता है। देखो, ये प्राइवेटाइजेशन और नेशनलाइजेशन जो है ये इकोनॉमिक प्रोसेस है, इसको समझना पड़ेगा, है ना, इकोनॉमिक प्रोसेस।
तो होता ये है, जब हम इकोनॉमी पढ़ेंगे वहां पर डिसइन्वेस्टमेंट का एक चैप्टर है, डिसइन्वेस्टमेंट का एक चैप्टर है। यहाँ पर होता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे पीएसयूज हैं, है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, बहुत सारे हैं, कुछ महारत्ना है, कुछ नवरत्ना है ना। उनको क्लासिफाई किया गया है, कैटेगराइज किया गया है कि महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, इन सब में क्लासिफाई किया गया। तो होता यह है कि जब गवर्नमेंट के पास ट्रेजरी या फिर रिवेन्यू की कमी हो जाती है, गवर्नमेंट अगर लॉस में चलती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इन सबको डिसइन्वेस्ट कर देती है। डिसइन्वेस्ट का मतलब ही होता है प्राइवेटाइजेशन। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। अब इशू ये है कि कितना परसेंटेज डिसइन्वेस्ट करती है ना। तो अगर किसी चीज को 49% अगर डिसइन्वेस्ट कर दिया, किसी एक स्टेक होल्डर है, सपोज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, अगर एनटीपीसी के टोटल स्कोर में 100% जो होगा, उसके 49% जो है शेयर जो है वो किसी को सेल कर देती है, ठीक है, 49% सेल कर देती है। तो 49% सेल करने के बाद क्या होता है कि ऑनरशिप जो है ये गवर्नमेंट के पास ही रहता है, ओनर गवर्नमेंट होती है यहाँ पर, अगर 49% सेल होती है। तो अगर 51% सेल कर दी तो ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल हो जाता है। प्राइवेट इंडिविजुअल जो है ऑनर बन जाता है। अगर 51% शेयर करती है, प्राइवेट इंडिविजुअल ऑनर बन जाता है इसमें। तो ये डिपेंड्स, अगर 100% कर देती है तो गवर्नमेंट का कोई स्टेक ही नहीं रहता उसमें, नो स्टेक फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट पूरी तरह इस कंपनी को पूरी तरह सेल कर देती है। अब डिपेंड करता है कि कितना सेल करती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे भी डिपेंड करता है कि ये पार्टिकुलर कंपनी ए बी सी डी, ये पार्टिकुलर कंपनी अगर लॉस मेकिंग है, तो इसको भाई प्राइवेटाइजेशन कर दो, प्राइवेट प्लेयर को दे दो। और प्राइवेट प्लेयर का काम ही होता है कि प्रॉफिट कमाना। गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर एक्टिविटी को देखना, लेकिन प्राइवेट प्लेयर का काम होता है प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट प्लेयर क्या करेगा, ये लॉस मेकिंग कंपनी से क्या करेगा, प्रॉफिट रेज करेगा, ठीक है। और जितना प्रॉफिट आएगा उतने प्रॉफिट फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर करेगा। तो अगर आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट को लगे कि ये पार्टिकुलर कंपनी जो है, ये पार्टिकुलर पीएसयू जो है, ये बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर इसको प्राइवेटाइजेशन की हुई है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन से लेकर के बोलेगी कि मुझे दे दो, इस कंपनी को गवर्नमेंट खुद ले लेगी, खुद से रन करेगी, ठीक है। तो इट हैपेंस, अगर वो इन्वॉल्व होता है, इकोनॉमिक प्रोसेस है वो। गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू की कमी है तो गवर्नमेंट इसको सेल करके रेवेन्यू कमाएगी। जिस दिन गवर्नमेंट का रेवेन्यू फुलफिल हो गया, वापस इस कंपनी को खुद से लेकर के खुद से चलाएगी गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी का मतलब होता है वेलफेयर स्टेट। डेमोक्रेसी मीन्स वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है, इसको बोलते हैं लेस गवर्नेंस, लेस गवर्नेंस स्टेट बोला जाता है इसको, लेस गवर्नेंस। और इसी का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, उसको लेसेस फेयर बोलते हैं। लेसेस फेयर स्टेट बोला जाता है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर लेस गवर्नमेंट का मतलब यह है कि गवर्नेंस जो होगी वो लेस होगी, और लॉ एंड ऑर्डर को भी जो है ना पॉपुलेशन के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को आप ही मेंटेन कीजिए। तो पॉपुलेशन वहाँ की इतनी एजुकेटेड होती है और इतने वेल मैनर्ड होते हैं कि उनको ज्यादा रेगुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे स्टेट को लेसेस फेयर स्टेट कहा जाता है। तो डेमोक्रेसी का अल्टीमेट मीनिंग जो है वो लेसेस फेयर स्टेट है, अल्टीमेट मीनिंग है डेमोक्रेसी का, है ना। और डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट के पास ज्यादा रोल होता है, गवर्नमेंट को सोशल रोल भी प्ले करना पड़ता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीमियल में भी लिखा हुआ है कि जस्टिस शुड बी ऑफ थ्री काइंड, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल।
तो वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस गवर्नमेंट को फुलफिल करनी पड़ती है। तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये डीपीएसपी से ही फुलफिल होता है। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस डीपीएसपी से फुलफिल करते हैं। तो अगर कोई जिस समय लगे कि गवर्नमेंट को प्राइवेट एंटिटी जो है अगर एक प्रॉफिट दे सकता है तो उसको फिर गवर्नमेंट नेशनलाइज कर लेगी, अपने अंदर ले लेगी, राइट। तो सो दिस हैपेंस इन बोथ द केसेस, दोनों तरफ से होता है। सो ये समझ में आया कि आर्टिकल 14 के ऊपर जो है आर्टिकल 39B एंड 39C हैज मोर प्रेफरेंस देन आर्टिकल 14। यस, एंड रेस्ट ऑफ द केसेस फंडामेंटल राइट्स आर अबव DPSPs. Is it clear? क्लियर है क्या? यस सर। अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंस क्यों है? तो पहली बात तो यह है कि दिस कोई भी गवर्नमेंट जो होती है 5 इयर्स के लिए हम सिलेक्ट करते हैं, 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं ना, और गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे प्रोमिसेस करती है। प्रोमिसेस मतलब मैनिफेस्टोज, गवर्नमेंट के मैनिफेस्टोज होते हैं, इलेक्शन मैनिफेस्टोज होते हैं, और उन मैनिफेस्टोज में जो DPSPs में जो फुलफिल करने की बात होती है ना, वही उन मैनिफेस्टोज में होती है। तो मैनिफेस्टोज जो गवर्नमेंट का मैनिफेस्टोज होता है या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के जो मैनिफेस्टोज होते हैं वो मेनली DPSPs को ही रिफ्लेक्ट करते हैं, DPSPs को ही रिफ्लेक्ट करते हैं। और थ्रू दिस मैनिफेस्टो गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू द सिटीजन्स, residents to fulfill their rights, to fulfill their some of the aspirations. तो DPSP का जो है लीगल सैंक्शंस नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट अगर कोई काम करने से रुक जाती है या कोई काम नहीं करती है तो हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हैं। अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है तो अंडर आर्टिकल 32 हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अंडर आर्टिकल 226 हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स के केस में है। लेकिन अगर DPSPs वायलेट हो जाए, DPSPs अगर वायलेट हो जाए, वी कैन नॉट अप्रोच टू एनी कोर्ट। तो इसका मतलब ये है कि नो लीगल सैंक्शंस, DPSPs में लीगल सैंक्शंस नहीं है। DPSPs में लीगल सैंक्शंस नहीं है, लेकिन DPSPs के पास पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं। DPSPs के पास पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं। जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है, जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है, दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल, गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू पीपल। लोगों को जवाब देना पड़ता है, उनको, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है ना। तो अगर DPSPs के किसी प्रोविजंस को गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किया तो गवर्नमेंट के पास लोग जवाब सवाल करेंगे ना कि आपने कहा था महंगाई दूर करेंगे, सबके अकाउंट में 15 लाख भेजेंगे, तो अभी तक आए नहीं। लोग सवाल करेंगे ना। फिर क्या होगा 5 इयर्स के बाद? 5 इयर्स के बाद क्या होगा? गवर्नमेंट को लोग हटा देंगे, गवर्नमेंट विल चेंज, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। तो ये जो DPSPs जो हैं इनके पास पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं, पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं, चेक एंड बैलेंस है। अगर ये किसी प्रोविजंस को फुलफिल नहीं करते हैं, दे हैव टू आंसर और रिप्लाई टू द पीपल, and if they do not fulfill their aspirations after 5 years they will be replaced, they will be replaced. So these, in this way they have political sanctions, उनके पास political sanctions हैं। ये पहला इंपॉर्टेंस है, फर्स्ट इंपॉर्टेंस है कि DPSPs के पास पॉलिटिकल सैंक्शंस हैं। लीगल सैंक्शंस अगर नहीं भी हुआ तो नो इशू। दूसरा ये है कि
जो डीपीएसपीज है, दिस कैन बी अ टेस्टिंग ग्राउंड. डीपीएसपीज कैन बी अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर गवर्नमेंट्स परफॉर्मेंस. फॉर गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, कि गवर्नमेंट कितना परफॉर्म कर रही है उसके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है डीपीएसपीज. कि भाई ये 10 डीपीएसपीज मेंशन किए हुए हैं, जो भी 11 डीपीएसपीज हैं, 10 डीपीएसपीज हैं जो मेंशन किए हुए हैं, आपने इन 10 में से कितने को फुलफिल किया? आउट ऑफ 11 5 फुलफिल किया, आउट ऑफ 11 2 फुलफिल किया, आउट ऑफ 11 आपने 11 फुलफिल किया. वेरी गुड, एक्सेलेंट. अगर पुअर रिजल्ट रहेगा तो ये रिपोर्ट कार्ड है, गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड ये देता है. डीपीएसपीज इज अ टेस्टिंग ग्राउंड. तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अगर होगी, कोई भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, वो क्या करेगी, जितने भी डीपीएसपीज हैं या जितने भी उनके मैनिफेस्टोज होते हैं, सारे मैनिफेस्टोज को क्या करेंगे, वो फुलफिल करेंगे. और थ्रू मैनिफेस्टोज दे आर एक्चुअली फुलफिलिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज. सम ऑफ द लॉज के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी डिक्लेयर किए जाते हैं डायरेक्टिव इन रिस्पेक्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोई लॉ अगर वायलेट करता है, दैट शुड बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड. तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी उनको डिक्लेयर किया जाता है. अभी ये डीपीएसपीज जो हैं, डीपीएसपीज आर लाइट हाउस. लाइट हाउस में क्या होता है, लाइट हाउस जब पहले नेविगेशन सिस्टम अगर नहीं था, ज्यादा उतना डेवलप नेविगेशन सिस्टम नहीं था, तो जो समुद्र में जहाज वगैरह आते थे ना, बड़े बड़े जहाज दूसरे देशों से आते थे, तो उनको लाइट के थ्रू जो है ना डायरेक्शन दिया जाता था. इधर लाइट बढ़ रही है, आप इस डायरेक्शन में आइए, यहाँ पर पोर्ट है ना. तो डीपीएसपीज आर एक्चुअली द लाइट हाउस फॉर द गवर्नमेंट. लाइट हाउस फॉर द गवर्नमेंट, या फिर बेकॉन बोलते हैं, बेकॉन लाइट फॉर द गवर्नमेंट. वो क्या करती है, गवर्नमेंट को एक एम देती है. लाइट हाउस या बेकॉन हाउस बोलते हैं. And this shows directions, some aims for the government to achieve, कि आपको ऐसा करना है और आपको इस रास्ते पे ही बढ़ना है, और अगर आप इस रास्ते पे चलें तो आप एक वेलफेयर स्टेट बना सकते हैं. तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है, वेलफेयर स्टेट बनाने का गोल है. अल्टीमेट गोल जो है वेलफेयर स्टेट बनाने का गोल है. ठीक है. सो दिस वाज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अगर क्वेश्चंस आए, क्वेश्चंस दो चीजों में आती है. एक तो डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशिएट डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें आता है. दूसरा क्वेश्चन, ये पहले प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन से. दूसरे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि व्हाई सम ऑफ द डीपीएसपीज आर गिवन प्रेफरेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स. हमने इतना अभी जो डिस्कस किया उसमें यह छुपा हुआ हमारा आंसर है ना. तो व्हाई सम ऑफ द डीपीएसपीज आर गिवन प्रेफरेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स, ये भी क्वेश्चंस आते हैं. उसके बाद डीपीएसपीज आर एस्पिरेशंस टू फुलफिल द और टू मीट द वेलफेयरिस्टिक नेचर ऑफ द स्टेट, है ना. डीपीएसपीज जो हैं वो स्टेट के जो वेलफेयरिस्टिक नेचर हैं उनको अचीव करने में हेल्प करती है. हाउ, आपसे ये क्वेश्चंस कर देगा, हाउ. सो यू हैव टू डिस्क्राइब ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी डिस्कस्ड राइट नाउ. तो अभी तक जो कहाँ गया, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो हैं, अभी तक हमने टिल अभी इंडिपेंडेंस के इतने साल हो गए और हमने किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया है. तो देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हमने कल बताया था. ये जो वेलफेयर स्टेट जो होता है ना, ये वेलफेयर स्टेट, इसको एक तरह से राम राज्य बोलते हैं. राम राज्य बोलते हैं. राम राज्य का मतलब ये होता है कि सभी लोग बराबर हों, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस,
एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, है ना। एक्चुअल में राम राज्य ये होता था, सभी लोग इक्वल हों, सबके पास इक्वलिटी हो, सभी अपने आप में राजा हो, ये था राम राज्य, किसी को कोई तकलीफ ना हो, वो है राम राज्य, वेलफेयर स्टेट को ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमारी इंडिया में एक बहुत बड़ा गैप है, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। इंडिया में ये गैप बिटवीन रिच एंड पुअर जो है, ये बहुत वाइड गैप है, वाइड गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। एंड दिस, अभी तक इंडिपेंडेंस के इतने समय तक हमने डीपीएसपीस को इंप्लीमेंट किया, बट वी वर नॉट और वी कुडंट ब्रिज दिस गैप। हमने इस गैप को खत्म नहीं कर पाया अभी तक। ये रिच एंड पुअर के बीच में जो डिवाइड है, ये गैप है, इतना बड़ा गैप है, हमने अभी तक इसको कवर नहीं कर पाए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ 1991 में, जब इंडिया बहुत करीब हो गई थी, है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उस समय भी उतने अच्छे रिफॉर्म्स, उस तरह के रिफॉर्म्स नहीं हुए जहां पर गरीब और अमीर के बीच का जो दूरी है, स्टेटस गैप है, वो खत्म हो जाए। तो हम इससे खुश नहीं थे। तो हमने एक नया टर्म, जब 12th 5 ईयर प्लान आया, तो हमने एक नया टर्म इंक्लूड किया उसमें, उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। एक और टर्म था, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है। तो 12 5 ईयर प्लान में सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं हम। सस्टेनेबल ग्रोथ मीन्स सिर्फ सर्वाइवल नहीं, कि सस्टेनेबल ग्रोथ मीन्स आप किसी भी रिसोर्सेज का उतना यूटिलाइजेशन कीजिए, फिर ताकि वो फ्यूचर के लिए भी अवेलेबल हो, नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी अवेलेबल हो। ठीक है। Here in inclusive growth, it means everyone in the society shall be included in the process of growing the nation, in the process of flourishing the nation. Everyone should be made responsible. Everyone should be made part with this. तो इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज लेकर आए, बहुत सारे प्रोग्राम, पॉलिसीज। We implemented various programs and policies for this, right? हम प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम एंड पॉलिसीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दिस हम सब्सिक्वेंटली वी विल मूव थ्रू प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑल्सो। जैसे सोशलिज्म्स हम जैसे इंप्लीमेंट करते हैं, सोशलिज्म्स या जैसे सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, we categorized the DPSPs in 4 parts. So first is socialistic principles. Socialistic principles. What is socialistic principles? Socialistic principles, it means we are aiming to bring about a socialistic state. Our aim is to make India into a socialistic state. Socialistic state, and this socialistic state works for welfare, of people. लोगों की भलाई के लिए काम करे। सोशलिस्टिक स्टेट उसको बोलते हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो पहला प्रिंसिपल हमने लाया वो है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। सो आर्टिकल 36 हमने कल देखा था कि आर्टिकल 36 डिफाइंस स्टेट, है ना। आर्टिकल 36 डिफाइंस स्टेट। स्टेट मतलब स्टेट वही है जो आर्टिकल 12 में हमने डिस्कस किया था। आर्टिकल 12 जब फंडामेंटल राइट शुरू कर रहे थे, तो आर्टिकल 12 में जो डिस्कस किए थे, स्टेट का मतलब यहां भी वही है, यहां भी स्टेट का मतलब वही है। आर्टिकल 37,
आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 सेज कि जो डीपीएसपीज जो हैं, डीपीएसपीज दीज आर नॉन जस्टिसिएबल. DPSPs are non-justiciable, not enforceable in the court of law. Article 37 says that though directive principles are non-justiciable, but they are fundamental. But they are fundamental for the governance of the country. They are fundamental for the governance of the country. This is Article 37. बस ये इसको डिफाइन करता है कि भाई आप डीपीएसपी को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो जरूरी है, फंडामेंटल है गवर्नेंस करने के लिए, देश को गवर्न करने के लिए. कमिंग टू आर्टिकल 48. आर्टिकल 48 एक्चुअल में सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करता है. आर्टिकल 48 एक्चुअल में सोशलिस्ट प्रिंसिपल को इंप्लीमेंट करता है, and it says to secure a social order for the promotion of welfare of the people. For the promotion of welfare of its people. Article 48 says about welfare of its people. To secure a social order for promotion of welfare of its people. So Article 48, it aims towards fulfilling the socialistic aim of the society, socialistic aim of the society, social need of the society. Then comes controversial article 30, actually 38, na? Article 38. Then comes Article 39. Article 39, most controversial one, because this article has precedence over fundamental rights. So Article 39. Article 39 secures 4 things. Article 39 secures 4 things. First, the right to adequate means of livelihood. Right to adequate means of livelihood for all its citizens. Adequate means of livelihood, कमाने का जो जरिया है, तरीका है, वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए, सबको होनी चाहिए. Adequate availability होनी चाहिए for all its citizens. Second है equitable distribution. Equitable distribution of materials, resources. Equitable distribution of material resources of the community. तो कम्युनिटी में जो भी रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हैं, यानी कि अनाज, खाने पीने की सामान, या फिर कोई भी ऐसे वेलफेयरिस्टिक गुड्स जो हैं, वो सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, सभी को बराबर मात्रा में मिलना चाहिए. ठीक है, दिस पॉइंट नंबर 2 सेज. पॉइंट नंबर 3, it says prevention of concentration of wealth and means of production. So it prevents wealth concentration, prevention of wealth concentration. ज्यादा संपत्ति जमा करके नहीं रख सकते. देखो हमारे डीपीएसपी में बोलते हैं, बट दो ये इन्फोर्सिबल नहीं है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके खिलाफ जाकर के कोर्ट में, अनिल अंबानी तो बेचारा गरीब हो गया, मुकेश अंबानी के खिलाफ कोर्ट में जाकर के केस करेंगे कि भाई उनके पास ज्यादा संपत्ति है, या फिर रतन टाटा हो गए, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हो गए जिनके खिलाफ जाकर के केस किया जाएगा कि उनके पास, उन्होंने वेल्थ कंसंट्रेट करके रखा हुआ है, हम
हमारे डीपीएसबी में लिखा हुआ है कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन नहीं करें, और उन्होंने वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो दे शुड बी गिवन ऑर्डर टू डिस्ट्रीब्यूट देयर वेल्थ, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं बहुत सारे लोग। प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, इट सेज पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई मेल और फीमेल दोनों अगर कोई सेम काम करते हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि जो लेडीज होती हैं उनको कम पेमेंट दिया जाता है। इक्वल, बराबर काम करती हैं लेकिन उनको कम पेमेंट किया जाता है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड दैट द फीमेल जेंडर इज वीक जेंडर, एंड उनको फिजिकली उतना फिट नहीं होने के कारण उनको वेजेस इक्वल नहीं दिए जाते हैं। तो यहां पर इसके लिए अलग से प्रोविजंस लाए गए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आर्टिकल 39 टॉक्स अबाउट इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर कोई बराबर तरीके से काम करता है, उनको इक्वल पेमेंट करनी चाहिए, इक्वल पेमेंट करना पड़ेगा। So Article 39 talks about these 4 things. Article 39 talks about these 4 things. You have to learn it. Article 39 talks about adequate means of livelihood. सभी को adequate opportunities मिलनी चाहिए livelihood का. Equitable distribution of material resources of the community for the fulfillment of its citizens. तो सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूशन मटेरियल रिसोर्सेज हैं, सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, संपत्ति को एक जगह जमा करके नहीं रख सकते हैं, वेल्थ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते हैं, ये प्रिवेंट किया गया है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन करने से प्रिवेंट किया गया है। एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर कोई समान काम करता है, किसी भी जेंडर का हो, उसको इक्वल पेमेंट करना पड़ेगा। नंबर 5, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, यानी कि प्रिवेंशन of health and strength of workers and children. तो हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, कोई भी अगर वर्कर काम कर रहा हो या बच्चे हो, उनके हेल्थ को और स्ट्रेंथ को किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड अगेंस्ट फोर्सिबल यूज। अगर बच्चों को या फिर वर्कर्स को कोई अगर फोर्सफुली यूज कर रहा हो, फोर्सफुली काम करवा रहा हो, तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, दैट इज point number 5 that talks about article 39.5. 6, opportunities, सभी बच्चों को for healthy development, opportunities for healthy development of children, अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। तो सभी बच्चों को एक समान अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए उनके मेंटल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हेल्दी डेवलपमेंट के लिए, है ना। सभी बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। So this becomes point number 6. These are the points which are being fulfilled through Article 39. Article 39 secures all these things. Can you see this? Article 39 secures all these things: adequate means of livelihood, equal distribution of materials, prevention of wealth concentrations, equal pay for equal work, prevention of health and strength of workers and children against forcible use, and opportunities for healthy development of children. Opportunities for healthy development of children. So these are some of the points under Article 39. Under Article 39. So we will take some 5
7 minutes of break. Five to 7 minutes of break. We'll again reassemble. Take 5 to 7 minutes of break. Excuse me, sir. Hello. Yes. हेलो सर. Yes, Rehan. Yes, Rehan. लेट ज्वाइन हुआ सर आज में. एक क्लास अपलोड हो जाएंगे. Sorry. आज लेट ज्वाइन हो गया सर. क्लास छूट गया आज का 1 घंटे. Okay, but I think you missed the previous class also, right? नो सर. You missed the प्रीवियस क्लास अटेंड किया था मैंने. कल हुआ था प्रीवियस, कल किए थे कल क्या नहीं अटेंड? किया था, सॉरी. हाँ, तो प्रीवियस क्लास भी आपने मिस किया ना, तो बहुत सारे क्लासेस आपसे मिस हुए हैं ना. बाय द वे कल कुछ वीडियोस अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब में, यू कैन मेंटेन फ्रॉम देयर. बट एक्चुअली क्लास का टाइमिंग 4 o'clock है, तो बी प्रेजेंट एट 4 o'clock. 4 बजे मैं 5 मिनट लेट शुरू कर देता हूँ, आप लोगों के लिए 5 मिनट लेट शुरू करता हूँ, अदरवाइज मैं 4 4 बजे ही शुरू कर देता हूँ. तो यू हैव टू बी ऑन टाइम. अगर आप मिस करते हैं तो उसका कोई उपाय मेरे पास तो नहीं है. एक ही उपाय है कि आपको यूट्यूब में देखना पड़ेगा, और यूट्यूब के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि कब वीडियोस अपलोड होंगे. ओके, उसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं है. ओके सर. राइट. कल से करूँगा.
Hi, all of you are here? Okay. So let's continue. So Article 39 secures these things. Okay. So adequate means of livelihood, equitable distribution of material resources of the community, preservation of wealth concentrations, equal pay for equal work, and prevention of health and strength of workers and children against forcible use, and opportunities for healthy development of children. Okay. So these are some of the duties विच द गवर्नमेंट नीड्स टू सिक्योर. ये कुछ ड्यूटीज हैं जो गवर्नमेंट को पूरे करने पड़ते हैं, है ना, और ये आर्टिकल 39 में दिए गए हैं. उसके बाद आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A आर्टिकल 39A, it ensures equal justice and free legal aid to poor. Equal justice and free legal aid. तो जो गरीब हैं उनके लिए इक्वल जस्टिस होनी चाहिए एंड फ्री लीगल एड. अगर लीगल एड मींस अगर वो किसी केस में फंसते हैं या किसी केस को डील करते हैं, उनके लिए लीगल एड जो होगा, जो एडवोकेट का जो ये होगा, वो फ्री दिया जाएगा उनको. लीगल एडवाइस फ्री दी जाएगी उनको. फ्री लीगल एड एंड इक्वल जस्टिस शुड बी देयर. आर्टिकल 39 talks about this. Article 39 talks about free legal aid and equal justice. Free legal aid and equal justice. Then comes Article 40. Article 40. Article 40. See, one more thing. I'll clear it. Whatever the PDF notes you will get today or tomorrow, I'll update you. So PDF में क्या होगा, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हम जो डिस्कस कर रहे हैं, PDF में एक बेसिक, ये बेसिक पॉइंट्स तो होंगे ही, बेसिक आइडियाज, बेसिक पॉइंट्स होंगे ही, प्लस जो स्कीम्स हैं, जो आर्टिकल 39 में स्कीम्स हैं, आर्टिकल 39 में, कि जैसे एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, तो लाइवलीहुड के लिए जो जो मीन्स अवेलेबल करवाए गए हैं, जैसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल NREGA, नरेगा हो गया, है ना, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये भी होता है. ये राइट टू वर्क में भी आता है, वो नेक्स्ट हम देखेंगे अभी. तो नरेगा के एक लाइवलीहुड का भी इंश्योर करता है, नरेगा हो गया, या रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया, बहुत सारे स्कीम्स हैं. तो जो हम PDF, I'll be whatever the PDF I'll be providing, in that PDF it will contain the schemes also. स्कीम्स भी कंटेन करेगा. तो अभी हम जो बेसिक पढ़ रहे हैं, बेसिक एंड आर्टिकल वाइज स्कीम्स को भी हम वहां कवर कर लेंगे, स्कीम्स को भी आर्टिकल वाइज वहां कवर कर लेंगे. अभी अगर हम स्कीम्स को भी एक साथ लेते चलें तो दैट विल बिकम मोर बोर वे, वी कैन से बोरिंग, एंड यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर दिस थिंग्स ऑल. सो एक एक करके करेंगे. पहले हम बेसिक कर लेते हैं. स्कीम्स को मैं PDF में दे दूंगा, अगर समझ में नहीं आए तो आई एम हियर टू डिस्कस. ओके. आर्टिकल 40. आर्टिकल 40 एक्चुअली में टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. तो आर्टिकल 40 में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि स्टेट विल ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत. अभी ये क्या है विलेज पंचायत, इसके बारे में कुछ कोई खोज खबर है ही नहीं. किसी ने कुछ प्रेम्बल में कुछ ज्यादा, या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ नहीं है आर्टिकल विलेज पंचायत के बारे में. अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट लाई है. ठीक है. और इसमें इन्होंने डिफाइन किया है, अभी 73rd अमेंडमेंट जो है ये पंचायत से है,
पंचायत से है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स को ऐड किए गए हैं। 74th जो है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से या म्यूनिसिपैलिटी से है, म्यूनिसिपैलिटीज से है। और इन दोनों को हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। इन या वो पंचायत हो या वो म्यूनिसिपैलिटीज हो, है ना। तो पंचायत भी ऐसे हम जब इसको डील करेंगे 73rd एंड 74th को डील करेंगे तो हम देखेंगे पंचायत क्या है और म्यूनिसिपैलिटीज क्या है। ज्यादा दिन नहीं है, विल बी कमिंग ऑन दिस वेरी सून। सो आर्टिकल 40 टॉक्स अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत एंड सब्सिक्वेंटली पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज्ड पंचायती राज सिस्टम्स। पार्लियामेंट ने पंचायती राज सिस्टम बनाया थ्रू 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से। 74th से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपैलिटीज एंड 73rd से पंचायती राज। देन कम्स आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 talks about right to work, secures right to work, to education, right to work, to education and to public assistance. And to public assistance in case of unemployment. अभी क्या लगता है, कोरोना अगर है और गवर्नमेंट फ्री में खाना बांट रही है या सबको राशन दे रही है तो वो गवर्नमेंट एहसान कर रही है? नहीं, ये राइट है गवर्नमेंट, ये ड्यूटीज लिखे हुए हैं यहाँ पर। आर्टिकल 41 में गवर्नमेंट को लिखा हुआ है कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड है और उनके पास कुछ नहीं है तो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस, एजुकेशन एंड वर्क ऑल्सो। तो इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन केस ऑफ ओल्ड एज, in case of sickness and also in case of disablement। ठीक है, अगर वो उनके पास कोई डिसेबिलिटी हो तो भी गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी उनको। सो दिस ऑल आर रिटन एंड हेंस गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। तो राइट टू वर्क के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? राइट टू वर्क के लिए गवर्नमेंट ने मनरेगा को बनाया। नरेगा एक स्कीम निकाली गवर्नमेंट ने। इसमें क्या किया कि आपको 200 डेज ऑफ वर्क, 200 डेज ऑफ, पहले 180 डेज था, अभी 200 डेज ऑफ वर्क, इन 200 डेज ऑफ गारंटीड वर्क देगी गवर्नमेंट। आपको सिर्फ रजिस्टर करना पड़ेगा। 200 डेज ऑफ गारंटीड वर्क, 200 दिन के लिए गारंटीड काम आपको मिलेगा। एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। और अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है प्रोवाइड करने से, आपको 200 दिन काम नहीं मिला, तो गवर्नमेंट विल पे यू कॉम्पनसेशन। तो यहां पर अलाउंस पे करती है गवर्नमेंट, अलाउंस पे करती है गवर्नमेंट। अगर नरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा का ये फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगर इसमें 200 डेज का वर्क अगर किसी को नहीं मिलता है, कंटिन्यूसली 200 डेज अगर वर्क नहीं मिला, तो गवर्नमेंट उसमें अलाउंस देती है। ठीक है, तो ये नरेगा जो है एक तरह से क्या करता है, गारंटी, वर्क की गारंटी देता है, दैट फुलफिल्स दिस राइट टू वर्क एस्पिरेशंस। ये जो राइट टू वर्क जो है ये फुलफिल करता है। राइट टू वर्क जो है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं कि राइट टू वर्क इज अ फंडामेंटल राइट। नो, राइट टू वर्क इज डीपीएसपी, इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट। टू एजुकेशन, आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसके लिए, इस एजुकेशन के लिए 86th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। 86th अमेंडमेंट एक्ट में 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक ड्यूटीज ऐड किए गए, फंडामेंटल ड्यूटीज एक ऐड किए गए, और राइट टू एजुकेशन RT एक्ट बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया।
इसमें क्या हुआ कि एवरीवन टिल द एज ऑफ 14 विल गेट फ्री एजुकेशन, टिल द एज ऑफ 14 विल गेट फ्री एजुकेशन। तो टिल द एज ऑफ फ्री एजुकेशन, अब इसमें यह भी कहा कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें 25% सीट्स जो हैं विल बी रिजर्व फॉर 25% of seats will be reserved for economically backward sections, economically backward। इकोनॉमी बैकवर्ड लोगों के लिए 25% सीट्स उनमें अवेल करवाया गया आरटी एक्ट के थ्रू। सो ये दिस इंश्योर्स, दिस आरटी राइट टू एजुकेशन, दिस इंश्योर्स टू गेट एजुकेशन टू दिस ड्यूटी, दिस फुलफिल्स दिस ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अभी बहुत सारी गवर्नमेंट ये बातें करती है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, जितने भी ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट हैं उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे 5000 पर ईयर, जैसे अमेरिका में दिया जाता है। अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाते हैं कि जब तक उनको जॉब नहीं लगे तब तक उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिए जाते हैं, है ना। इंडियन गवर्नमेंट ने, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट भी अभी इस बारे में बात कर रही है, झारखंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, उसके बाद यूपी की गवर्नमेंट, इन सब के बारे में बात कर रही है। इवन प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस कि हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। those who have completed graduate and are unemployed, we will be providing unemployment allowance। अगर ओल्ड एज हैं तो ओल्ड एज स्कीम्स के लिए, ओल्ड एज के लिए भी स्कीम्स निकालेंगे, जैसे पेंशन स्कीम्स होते हैं, पेंशन स्कीम्स होते हैं तो पर मंथ उनको कुछ पेंशन दिए जाते हैं ओल्ड एज के लिए, पेंशन स्कीम्स। सिकनेस, अगर कोई बीमार हो, जैसे अभी पेंडेमिक का सिचुएशन है, कोरोना, अगर कोरोना है तो गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिलना चाहिए उन्हें फ्री में, फ्री लीगल असिस्टेंस या फ्री असिस्टेंस मिलनी चाहिए गवर्नमेंट को। और अगर डिसेबलमेंट हैं, उनको किसी तरह की डिसेबिलिटी हो तो उनको सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट की सपोर्ट मिलती है, ठीक है। सो आर्टिकल 41 इंश्योर्स दिस ऑल थिंग्स, राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट। दिस वाज आर्टिकल 41। आर्टिकल 42, Article 42, it ensures just and human condition of workplace and maternity leave। Ensures just and human condition, just and human condition at workplace just and human condition at workplace and maternity leave। तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है और अगर किसी ऑफिस में काम कर रही हैं तो उनको मैटरनिटी लीव दिया जाता है ना। तो अभी मैटरनिटी लीव के ऊपर ये गवर्नमेंट अलग से रेगुलेट करती है, मैटरनिटी लीव रेगुलेशंस अलग से है गवर्नमेंट का, कितने दिनों को छुट्टी देना चाहिए। 9 मंथ्स के पीरियड में या 10 मंथ का पीरियड माना जाता है, उनमें से फर्स्ट 5-6 मंथ वो वर्क कर सकती हैं, उसके बाद वो 3 महीने के लिए घर में बैठ सकती हैं, 3-4 महीने के लिए घर पे रह सकती हैं, राइट। सो उस 3-4 महीने में जो ऑफिसेज हैं वो उनको पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो वो पेड मैटरनिटी लीव होगा, पेड मैटरनिटी लीव, ठीक है। तो इंश्योर्स जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, जहां पर इक्वल जस्टिस हो सभी दोनों जेंडर्स के लिए, या मेल हो या फीमेल हो उनके लिए भी, और फीमेल कंडीशंस उनके लिए भी अच्छी तरह से, उनके जो भी वर्क प्लेस हो, जहां भी वो काम करते हो, जिस ऑफिस में वो काम करते हो, वहां पर एक जस्ट कंडीशन हो, एक ह्यूमन कंडीशन हो काम करने का, है ना। डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता हो, इंफीरियर नहीं समझा जाता हो कि जेंडर गैप है या फिर जेंडर इंफीरियरिटी है, ये किसी के मन में नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, एब्यूज नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये इंश्योर करता है आर्टिकल 42। और अगर ऐसा कुछ होता है, इसके लिए अलग से बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं जो इंप्लीमेंट होते हैं। आर्टिकल 43,
Article 43, it talks about, or it secures a decent standard of life for workers. Decent standard of life for workers. Decent standard of life for workers by providing them a living wage. अभी देखो, a living wage, अभी ऐसा कभी सुना है living wage क्या होता है? By providing a living wage amongst other things. अभी ये लिविंग वेज क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करेगा? विल एनीवन से एनीथिंग अबाउट लिविंग? व्हाट इज लिविंग वेज? व्हाट इज लिविंग वेज? तो लिविंग वेज का मतलब होता है कि वेज मतलब होता है कि उतने जो काम करे उसको उतना रेम्युनरेशन दिया जाए, वेज, लिविंग वेज that is needed, living wage that is needed to fulfill or to meet specific living standards. स्पेसिफिक लिविंग स्टैंडर्ड. अगर एक लेडी काम कर रही हैं, और इनके 2 बच्चे हैं, है ना, तो इनके 2 बच्चे हैं, हस्बैंड नहीं है, और ये काम कर रही हैं, तो इनको इतना, अगर वेज कम हो, एक लिविंग वेज होता है और एक मिनिमम वेज होता है. मिनिमम वेज और मिनिमम वेज, सपोज कि मिनिमम वेज अगर 100 रुपीज है, लेकिन 100 रुपीज में ये लेडी और इनके 2 बच्चे का फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगा, तो इनको लिविंग वेज दिया जाएगा, मिनिमम वेज नहीं दिया जाएगा. तो लिविंग वेज में क्या किया जाएगा, इन दोनों बच्चों को भी इंक्लूड किया जाएगा, और फिर उन दोनों बच्चों के लिए भी जो अमाउंट होंगे उनको ऐड करके इनको इतना पेमेंट किया जाएगा. सो दिस इज लिविंग वेज. तो लिविंग वेज में जो स्पेसिफिक लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए जितना वेज चाहिए, जितना मनी चाहिए, या जितना चार्ज चाहिए, पैसा चाहिए, उनको उतना पेमेंट किया जाता है. दैट इज लिविंग वेज. दैट इज लिविंग वेज. और मिनिमम वेज जो होता है, जो लॉ में प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन मेड बाय लॉ, this may not be similar to living wage, may not be similar, yes, or equal. तो लिविंग वेज के बराबर नहीं भी हो सकते हैं, या उसके आसपास नहीं हो सकते हैं, कम हो सकते हैं. ठीक है, मिनिमम वेज लिविंग वेज से कम हो सकते हैं, तो उस केस में उनको लिविंग वेज दिया जाएगा. आर्टिकल 43 टॉक्स अबाउट दिस ओनली. आर्टिकल 43 talks about decent standard of life for workers by providing them a living wage amongst other things. So दूसरी चीजें भी उनको दी जाएंगी और लिविंग वेज भी दी जाएंगी. दूसरी चीजों में फैसिलिटीज होते हैं ना, जैसे किसी का इंश्योरेंस फैसिलिटी दिया जाता है, फिर किसी को पीएफ प्रोविडेंट फंड्स की फैसिलिटी दी जाती है. तो दिस ऑल नीड्स टू बी प्रोवाइडेड. देखो, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, वो भी वर्कर है, गवर्नमेंट के लिए वो भी वर्कर है, तो उसको एक लिविंग वेज दिया जाता है ना. लिविंग वेज स्टैंडर्ड लाइफ के लिए, डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ के लिए उसको लिविंग वेज दिया जाता है. गवर्नमेंट वर्कर्स को भी मिनिमम वेज से ज्यादा होता है लिविंग वेज. ऑलवेज हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि लिविंग वेज जो होता है मिनिमम वेज से हमेशा ज्यादा होता है. ठीक है, उसके अलावा भी अदर चीजें दी जाती है ना, HRA, डियरनेस अमाउंट, महंगाई भत्ता, डियरनेस अमाउंट, या फिर और अलग तरह के अलाउंस दिए जाते हैं. और अगर आप IAS बन गए तो फिर और भी बहुत सारे अलाउंस मिलेंगे आपको, है ना. तो IAS बनिए, फिर बहुत सारे अलाउंस आपको मिलेगा. इवन न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए पैसे मिलेंगे आपको. सोचिए, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए पैसे मिलेंगे आपको. सो दिस इज आर्टिकल 43. देन आर्टिकल 43A.
आर्टिकल 43A, दिस ये बाद में ऐड किया गया है, आर्टिकल 43A, लेटर ऑन इट हैज बीन एडेड. It talks about securing participation of workers in management of industries. So workers should participate in management of industries. In management of industries, it secures participation of workers in management of industries, right? And article 47, हमारे जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं उसमें आर्टिकल 47 भी आते हैं. और आर्टिकल 47 एम्स टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ बाय रेजिंग द न्यूट्रिशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. aims to improve public health, aims to improve public health by raising the nutrition level. By raising the nutrition level and standard of living of people. तो इसमें आर्टिकल 47 में जैसे हम घर बना कर देते हैं ना, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स मनी फॉर द, आप घर बना सकते हैं, है ना, हेल्प करती है गवर्नमेंट घर बनाने के लिए, या फिर अभी जो स्टैंडर्ड लिविंग के लिए या फिर हेल्दी लिविंग के लिए बहुत सारे स्कीम्स निकले, जैसे टॉयलेट बनाने के स्कीम्स है ना, स्वच्छ भारत अभियान में टॉयलेट बनाए जाते हैं. उसके बाद न्यूट्रिशन लेवल को इंक्रीज करने के लिए पीडीएस शॉप में पल्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, राइस का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है ना. तो दिस ऑल आर बीइंग फुलफिल. ये सब सारे क्राइटेरिया जो हैं वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को फुलफिल करते हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को फुलफिल करते हैं. तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में एक फाइनल है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में डीपीएसपी के कौन कौन से आर्टिकल आते हैं वो आपको ध्यान देना पड़ेगा. तो दैट इज आर्टिकल 38, आर्टिकल 38, 39, ठीक है, आर्टिकल 38, 39, 39A, देन आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 42, देन आर्टिकल 43, then article 43A, and then article 47. These all comes into socialistic principles. This all fulfills socialistic aim of the society under directive principle of state policies. ठीक है, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को फुलफिल करते हैं, सोशलिस्टिक एम को फुलफिल करते हैं. इसके अलावे जो है हमारे पास गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स को फुलफिल करते हैं. देखो गांधीयन प्रिंसिपल को पहले मैं आर्टिकल बता देता हूं कौन कौन से आर्टिकल गांधीयन प्रिंसिपल्स को फुलफिल करते हैं. तो ये ओवरलैपिंग हो सकते हैं आर्टिकल 43, 46, दिस ऑल फुलफिल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स. अगेन 47 आल्सो इज वन ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल्स, एंड 48, ये सारे गांधीयन प्रिंसिपल को फुलफिल करते हैं. तो 4 आर्टिकल्स फुलफिल्स द गांधीयन प्रिंसिपल्स. 4 आर्टिकल फुलफिल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स. गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है? द प्रिंसिपल्स सेंटर अराउंड द प्रोग्राम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन. गांधी जी ने पहले कहा था कि जो इंडिया है, हार्ट ऑफ इंडिया ड्वेल्स इन द विलेजेस. अगर इंडिया का आत्मा अगर कहीं बसता है तो वो गांव में बसता है ना. तो गांव को आप इंपावर करो, इंडिया अपने आप डेवलप हो जाएगा, इंडिया अपने आप इंपावर हो जाएगा. तो इनका फोकस कहां था? रूरल डेवलपमेंट में.
इनका फोकस रूरल डेवलपमेंट में था। तो इनके प्रिंसिपल्स को हम कैसे समझेंगे या डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स को समझने के लिए, गांधीयन प्रिंसिपल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें वैसे प्रिंसिपल्स को ढूंढना पड़ेगा जो रूरल रिकंस्ट्रक्शंस करते हो, रूरल एरियाज को डेवलप करते हो। तो इन फोकस गांधीयन प्रिंसिपल का जो फोकस था वो रूरल रिकंस्ट्रक्शन में था। द फोकस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल इज ऑन रूरल रिकंस्ट्रक्शंस, जैसे गांधी जी ने बताया था। तो इन्होंने कहा था कि जो विलेज के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, उनको पॉलिटिकली, जो गांव के लोग हैं उनको पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंपावर करो। पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इंपावर करो। रूरल रिकंस्ट्रक्शंस उनका फोकस था, यानी कि रूरल एरियाज को ज्यादा फोकस करें। उनका ये मानना था कि अगर हम विलेजेस को डेवलप करेंगे, विलेजेस को जैसे जैसे डेवलप करेंगे, पूरा स्टेट, कंट्री अपने आप डेवलप हो जाएगा। तो पॉलिटिकली उनको एम्पावर करना है। पॉलिटिकली एम्पावर करने के लिए वो चाहते थे कि पंचायती राज इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। और वो चाहते थे कि पंचायती राज को ऑटोनॉमी दिया जाए, ऑटोनॉमी दिया जाए कि ये अपना रिवेन्यू खुद कलेक्ट कर पाए और सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बने, ठीक है। ये बहुत अच्छा ये है कि सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस, सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस बनाए जाए कि एक विलेज अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो, सभी कुछ जो है वहां पर उपजाया जाता हो। तो दैट वाज द विजन ऑफ गांधी जी, दैट वाज द विजन ऑफ गांधी जी। और उनके एस्पिरेशंस को फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी को पॉलिटिकली उनको एम्पावर करने के लिए जो भी ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाएगा, जो भी ग्रास रूट लेवल पे जो भी काम वर्क किए जाएंगे, दैट ऑल एम्पावर्स गांधीयन फिलोसफी और गांधीयन प्रिंसिपल। तो आर्टिकल 40 जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज, ये दिस आर्टिकल सेज दैट ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड इंडो देम with powers and authority necessary to enable them to function as units of self government, self sufficient villages बनाने के लिए उनको इतना empower कर दो, उनको इतना authority दे दो ताकि वो अपने आप को अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाए, अपने आप को अच्छी तरीके से रेगुलेट कर पाए। दैट इज आर्टिकल 40, दैट इज आर्टिकल 40। आर्टिकल 43 गांधीयन व्यू से हम देखते हैं इसको। आर्टिकल 43 को गांधीयन व्यू से देखते हैं। इट प्रोमोट्स कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करते हैं ये। देखो गांधी जी खुद खादी बनाते थे, खादी पहनते थे, राइट, खादी बनाते थे, वो खुद पहनते भी थे। तो वो चाहते थे कि लोग भी जो हैं, जो विलेज के लोग हैं, वो सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए उनके कॉटेज इंडस्ट्रीज, जो लघु उद्योग जो है उनको दिया जाए। लघु उद्योग, वो छोटे छोटे उद्योग करें और अपने आप को वो प्रमोट करें, इंपावर करें। इकोनॉमिकली इंपावर करेंगे, पॉलिटिकली भी इंपावर हो जाएंगे। अगर पंचायती राज स्टैब्लिश होगा, एक गांव में पंचायत बनेगा, है ना, पंचायत बनेगा, कुछ मेंबर्स बनेंगे, तो ये सारे मेंबर्स और पंचायती राज के मेंबर्स जो होते हैं ना, वो गांव विलेज के सारे लोग पंचायती राज के मेंबर्स होते हैं। तो अगर गांव में विलेज में अगर पंचायती राज अगर कहीं एस्टैब्लिश हुआ, पंचायती राज का सिलेक्शन हुआ, it means that empowers even one individual. Every individuals are being empowered in Panchayati Raj. So that is Article 43.
sorry 40, article 40, empowerment of panchayati raj is article 40, and article 43 talks about promotion of cottage industries in rural areas. रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना. देन कम्स आर्टिकल 46, ये गांधीयन प्रिंसिपल्स में आते हैं. आर्टिकल 46 इट टॉक्स अबाउट प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ, देखो गांधी एंड अंबेडकर में कुछ डिफरेंस था. प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. Educational and economic interests of SCs, STs, and the other weaker sections of the society. Other weaker sections of society. तो प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल, उनको पढ़ाओ, शिक्षा दो. सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत इसके लिए की गई थी. गांव गांव में जाकर के लोगों को शिक्षा देना, गांव गांव में जाकर के लोगों को शिक्षा देना. इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनमें जगाना ताकि वो ये कॉटेज इंडस्ट्रीज को अपने आप में अपना सकें, और एससी एसटीज को इंकरेज करना ताकि वो पढ़ाई करें. क्योंकि एससीज एंड एसटीज एंड ओबीसीज, अदर वीकर सेक्शंस जो हैं, ये ज्यादा बैकवर्ड थे, और बैकवर्ड अगर कंटिन्यूअसली रहे तो कोई भी विलेज फ्लोरिश नहीं होगा, कोई भी विलेज आगे नहीं बढ़ेगा. तो इसलिए उन्होंने इन सब सेक्शंस को, वीकर सेक्शंस जो थे या फिर बैकवर्ड सेक्शंस जो थे, उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया. एजुकेशन दो या इकोनॉमिक इंटरेस्ट जगाओ ताकि वो कॉटेज इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग जो है वो घर पे ही खोल सकें और सेल्फ सफिशिएंट बन सकें, सेल्फ सफिशिएंट बन सकें. और अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ना, उनका भी वही स्लोगन है, सेल्फ सफिशिएंट बनो, काम ढूंढने वाला नहीं, जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनो. तो दिस ऑल आर्टिकल 46 talks about promotion of educational and economic interest, and this was to protect these weaker sections, to protect them from any kind of social injustice and exploitation. तो इनके पास अगर एजुकेशन होगा और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी तो कोई इनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, है ना. इनजस्टिस उनके साथ नहीं होगा, राइट, क्योंकि उनके पास नॉलेज होगा. सो उनका एस्पिरेशंस ये था कि उनको एम्पावर करो सो दैट दे शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड. सो गांव में पहले डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, गांधी के समय में भी, अभी भी है, अभी फॉर्म बदल गया है. पहले डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, गांव में डिस्क्रिमिनेशन बहुत था. तो इनको इन सब डिस्क्रिमिनेशंस को, देखो अंबेडकर ने भी अभियान चलाए थे, बी आर अंबेडकर और गांधी. तो इन दोनों के अभियान में, इन दोनों के मूवमेंट में टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, है ना, दोनों ने कहा था कि अनटचेबिलिटी को हटाना है, बट दोनों की कहने का तरीका अलग था. ठीक है, अब हम अभी इनको कंपेयर नहीं करेंगे, ये कंपेयर बाद में करेंगे. हमारे पास कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे जब हम अंबेडकर और गांधी जी को कंपेयर करेंगे ताकि वो टॉपिक फुलफिल हो जाए. हमारे यहाँ पर ये पॉइंट है कि बोथ हैव रेज्ड द क्वेश्चंस ऑफ ब्रिंगिंग सोशल जस्टिस. हाउएवर, ideas of Gandhiji have been mentioned in the DPSPs also to bring social justice and to empower them educationally and economically so that they can be protected from happening social injustice and exploitations. So this was Article 46. एक है Article 47. Article 47 it talks about to bring the prohibition of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health. तो ये जो लीकर होते हैं ना, प्रोहिबिशन,
prohibition of intoxicating drinks. Prohibition of intoxicating drinks and drugs that are injurious to health. अभी ये ड्रग्स मतलब दवा भी होता है, दवा को नहीं, ड्रग्स जिससे हेल्थ को खराबी होती है. तो वैसे ड्रिंक्स और वैसे ड्रग्स जिससे हेल्थ को नुकसान हो उनको प्रोहिबिट करना. दिस इज आर्टिकल 47. तो यहाँ पर आर्टिकल 47 जो है, यहाँ पर बहुत सारे एजेंसीज या फिर बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए गए हैं आर्टिकल 47 को इंप्लीमेंट करने के लिए. देन कम्स आर्टिकल 48. आर्टिकल 48 it talks about organization of agriculture and animal husbandry. Organization of agriculture and animal husbandry. Organization of agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस. अभी ये आर्टिकल 48 जो है, दिस ऑल्सो प्रोहिबिट्स आर्टिकल 48 ऑल्सो प्रोहिबिट्स काउ स्लाउटर. Slaughter of cows, calves, and other milch. And draught animals. ठीक है. तो आर्टिकल 48 ऑल्सो प्रोहिबिट्स स्लॉटर ऑफ काउस. काउस को नहीं मार सकते हैं. जो क्या बोलते हैं, जो काउ को काटकर या फिर बेचते हैं, या फिर देखो कंजम्पशन कैन नॉट बी स्टॉप, और उसके ऊपर बैन भी नहीं है ना. कंजम्पशन के ऊपर बैन नहीं है. हाउएवर कुछ अमाउंट ऑफ जो कुछ तरह के गाय हैं, अगर गाय प्रोडक्टिव हो, काउस और काव्स अगर मिल्क जो है अगर वो प्रोडक्टिव हो, उस कंडीशन में उसको नहीं काटा जा सकता है. अगर वो अनप्रोडक्टिव हो जाए, टिल द टाइम दे बिकम अनप्रोडक्टिव, उस समय उसको स्लाउटर कर सकते हैं उसका. ठीक है. तो इट प्रोहिबिट्स दोज काउज. ठीक है. इसको रॉन्ग इसमें नहीं लेना है, रॉन्ग आइडियाज में नहीं लेना है इसको. स्लाउटर ऑफ काउज इज प्रोहिबिटेड बट ओनली दोज विच आर प्रोडक्टिव. अगर वो अनप्रोडक्टिव एज में पहुंच जाएं, दे कैन बी स्लाउटर्ड. काव्स को स्लाउटर करने से मना किया गया है, पूरा बैन है. मिल्स को एंड अदर ड्रॉट एनिमल्स जो भी हैं, उनको स्लाउटर करने से पूरा बैर किया गया है. दैट इज आर्टिकल 48. सो ये दिस ऑल आर, देखो इसको गांधीयन प्रिंसिपल्स में इसलिए रखा गया कि नॉन वायलेंस दिस वाज वन ऑफ द मंत्रास और वन ऑफ द वेपन ऑफ गांधी, है ना. नॉन वायलेंस वाज वन ऑफ द वेपन ऑफ गांधी एंड हेंस दिस हैज बीन इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 48. So this was the Gandhian principles. Okay. Gandhian principles में आर्टिकल्स जो आते हैं, that is 43, 46, 47 and 48. Just remember it. And socialistic principles में जो आर्टिकल्स आते हैं 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A and 47. तो गांधी सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में टोटल 8 आर्टिकल्स हैं, गांधीयन प्रिंसिपल्स में टोटल 4 आर्टिकल्स हैं. ठीक है. तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट 12 आर्टिकल्स टुडे. ओवरलैपिंग आर्टिकल्स आर देयर. 43 यहाँ भी है, 43 यहाँ भी है, राइट. 47 यहाँ भी है, 47 यहाँ भी है. ओवरलैपिंग आर्टिकल्स आर देयर, बट यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट दिस. वी विल बी डिस्कसिंग द नेक्स्ट, दैट इज वेस्टर्न लिबरल आइडियाज और वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स टुमारो.
ओके, सो आज के लिए इतना ही। आज के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस हो, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रेज, और मैं आपको आज या कल तक में इसका नोट्स दे दूंगा। एनी क्वेश्चंस एनीवन, या कोई ऐसा प्रोविजन हो जो समझ में नहीं आया हो और आई नीड टू बी रिपीटेड दैट, आप बता दीजिए प्लीज। अभी जो नेक्स्ट ये होने वाला नेक्स्ट क्लास वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा डीपीएसपी के ऊपर, क्योंकि वेस्टर्न लिबरल आइडियाज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे जो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं, स्कीम्स हैं, वो भी हम लाएंगे यहाँ पर, डिस्कस करेंगे। सो एनी क्वेश्चंस? Sir, it is not from DPSPs, but yeah, like why is this fundamental rights are considered as negative to the state? Why fundamental rights are considered negative for the state? अगर आपकी if your fundamental rights are being violated, you are empowered to go to Supreme Court under Article 32. ठीक है, and if your article, no matter who violates it, ये मैटर नहीं करता, कोई भी वायलेट करे, या वो स्टेट हो या इंडिविजुअल हो, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट, और अंडर आर्टिकल 226 यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हाई कोर्ट। ठीक है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उस लाइन पे भी डायरेक्ट किए गए हैं कि दे ट्राइज टू प्रोटेक्ट, they try to protect the individual fundamental right। तो इस केस में मैं एक कहानी के साथ बताता हूँ। जैसे देखो 19 जब इंडिपेंडेंट हुआ और 70s के पहले या फिर 60s में डेवलपमेंटल वर्क के लिए फिफ्थ और सिक्स 5 ईयर प्लान के समय में, या फोर्थ फिफ्थ सिक्स 5 ईयर प्लान के समय में डेवलपमेंटल वर्क के लिए क्या हुआ था, लोगों के पास जो जमीनें थी वो सरकार ले रही थी, गवर्नमेंट उसको एक्वायर कर रही थी, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट द रोड, गवर्नमेंट हैज टू ले द इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, राइट, एंड अदर फैसिलिटीज फॉर द पॉपुलेशंस, फॉर द सिटीजन्स। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी, लोगों के, गवर्नमेंट के पास तो जमीन था नहीं ना, तो लोगों के पास राइट टू प्रॉपर्टी अगर पहले फंडामेंटल राइट में था, तो गवर्नमेंट क्या करती थी, लोगों से जमीन ले रही थी। तो गवर्नमेंट एक जगह देखती थी और गवर्नमेंट वहां से जमीन ले लेती थी, और गवर्नमेंट कुछ कॉम्पनसेशन भी देती थी। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते थे कि नहीं, मैं अपना जमीन नहीं बेचूंगा, ये मेरे बाप दादा और क्या बोलते हैं पूरे पूर्वजों का संपत्ति है ना, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, एंड आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट, आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट टू एनीवन, मींस गवर्नमेंट हो, एंड फॉर व्हाट पर्पस दे आर एक्वायरिंग इट, वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट। तो वे क्या करते थे, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता था अंडर आर्टिकल 31 और 19(1)(f) में, है ना, 19(1)(f) में उनका फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता था। तो वो क्या करते थे, फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली चले जाते थे, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुआ है, क्योंकि वो उनको उनके प्रॉपर्टी से उनको डिप्राइव कर दिया गया है, उनके प्रॉपर्टी को ले लिया गया है। तो दे डायरेक्टली वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो है ना, दे फेवर्ड दैट इंडिविजुअल। सुप्रीम कोर्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना, अगर 100 केसेस गए होंगे तो 99 केसेस में उस इंडिविजुअल को ही फेवर की है सुप्रीम कोर्ट ने या जुडिशियरी ने, बिकॉज फंडामेंटल राइट में था, प्रॉपर्टी को पजेस करना फंडामेंटल राइट में था। तो क्या होता था, डेवलपमेंटल वर्क होते नहीं थे, डेवलपमेंटल वर्क जो है वो स्टॉल हो जाते थे, क्योंकि जमीन नहीं मिलती थी, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकता था, है ना, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकता गवर्नमेंट यहाँ पर। तो इस केस में क्या होता था कि फंडामेंटल राइट्स को गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियरी ज्यादा प्रेसिडेंस देती थी इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट्स को। इस केस में क्या होता था, स्टेट के लिए ये निगेटिव कॉन्टेक्स्ट हो जाता था, स्टेट के लिए निगेटिव कॉन्टेक्स्ट है कि स्टेट इज बीइंग डिप्राइव्ड फ्रॉम टेकिंग द लैंड ऑफ दैट इंडिविजुअल फॉर डेवलपमेंटल वर्क। अगर हॉस्पिटल बन जाए, देखो आज अगर वो जमीन है, इतना बड़ा जमीन है, सपोज इतना बड़ा अगर लैंड है और इसमें वो क्रॉप उगा रहा है, कोई जमीन कोई फसल उगा रहा है, ठीक है, क्रॉप ग्रो कर रहा है यहाँ पर, तो उस क्रॉप से उस एक फैमिली को हेल्प होता था,
और अगर यहाँ हॉस्पिटल बन जाए तो इस हॉस्पिटल से कितने लोगों का हेल्प होगा? पूरी कम्युनिटी का हेल्प होगा या पूरे विलेजर्स, पूरे सिटी के लोगों का हेल्प होगा, राइट? सो मैक्सिमम गुड अगर जहां पर हो, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल मैंने पहले भी कहा था, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल अगर जहां पर हो, गवर्नमेंट उसको या जुडिशियरी इन नेचुरल केस में रूल ऑफ लॉ कहता है कि जहां पर यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल हो उसको ज्यादा फॉलो करो इन नेचुरल केस में। बट इस केस में क्या होता था, क्योंकि वो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, इसलिए इंडिविजुअल जीत जाता था और गवर्नमेंट हार जाती थी। तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, गवर्नमेंट का मतलब स्टेट, स्टेट के लिए क्या हो गया, वो निगेटिव एस्पेक्ट हो गया, निगेटिव ऑब्लिगेशंस हो गया, निगेटिव ऑब्लिगेशंस हो गए। अभी भी बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन हो या फिर प्यूनिटिव डिटेंशन हो, या फिर अगर कहीं इमरजेंसी लागू हो गया, इमरजेंसी कहीं पर अगर आता है, इफ इमरजेंसी समवेयर, देन आर्टिकल 19, some of the article 19 is completely removed. So you do not have the right to move, you do not have the right to go anywhere, you do not have the right to livelihood, you do not have the right to स्पीच, फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप न्यूज़पेपर में बोल नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि आर्टिकल 19 भाई कॉन्फिस्केट हो गया है, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इन केस आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यस आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्योंकि आपका राइट है ना, आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज योर राइट, and if somebody is obstructing your right you can approach the supreme court। और उस समय क्या होता था, गवर्नमेंट को या स्टेट को पीछे हटना पड़ता है, अभी भी हटना पड़ता है। सो इसलिए फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट, फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट, इट इन्फोर्सेस द गवर्नमेंट टू फुलफिल इंडिविजुअल राइट्स, है ना, गवर्नमेंट को इन्फोर्स करती है कि इंडिविजुअल राइट्स को फुलफिल करो, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। आया समझ में? दैट्स व्हाई इट इज निगेटिव ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट। एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसको हम केस नहीं कर सकते, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कोर्ट में नहीं ले जा सकते, इसलिए वो पॉजिटिव ऑब्लिगेशन फॉर द स्टेट है, स्टेट के लिए पॉजिटिव ऑब्लिगेशन। समझ में आया? गॉट द पॉइंट? Clear, sir. Got it. एनीवन, एनी क्वेश्चंस, एनी मोर क्वेश्चंस? समझ में आया क्या सबको? Okay, then we'll continue tomorrow at 4 p.m. Okay? If there is no questions, I'll finish it here itself. Okay? No question? Okay, sir. Thank you. Okay, bye. Take care.